Good morning to all of you. Today we are going to discuss about the chapter sexual reproduction in flowering plants. First, in sexual reproduction in flowering plant, the important organ which is involved, that is known as a flower. तो now come to flower. तो इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? Sexual reproduction in flowering plants. We have to give idea about flower because flower is the only important part, or it is called as a sexual reproductive unit, the part of the plant which helps in sexual reproduction. So what is actually a flower? The flower is nothing. Flower is a modified shoot. Modified shoot. What is modified shoot? Flower is a modified shoot. Modified shoot. The plant part is mainly divided into two parts. The lower ground portion, below the ground there is a root, and above the ground there is a shoot. So flower are mainly found above the ground, so that's why it is a modified shoot. Modified means some changes are there, so modified shoot. So that's why mainly flower arises from the stem. Mainly flower arises from the stem. This is the stem part of the plant. From the stem actually flower arises. And if you look at the flower, how flower appears, if you look at the flower, cross section of a flower are nothing the modified shoot which helps in sexual reproduction. Modified shoot. Now I am showing different parts of the flower. What are the parts of the flower? It is a modified shoot and containing these portions. If you carefully look at the parts of the flower, the first important part of the flower, if you look carefully, the first important part from where the flower arises, from the stem. Each flower attached to the stem, this part is the stem, attached to the stem of the plant by a stalk. This portion is a stalk. The stalk of flower is known as a pedicel. Pedicel. You have to remember what is pedicel. Sometime one mark question comes in your board exam. So what is pedicel? Pedicel is the stalk of the flower by which flower is connected to the stem, because it arises from the stem, modified shoot. This is pedicel. But the upper end of pedicel, if you look at the upper end, this is the lower end of the pedicel which is directly attached to the stem. The upper end of pedicel away from the stem, the upper end of pedicel is swollen. You can look carefully. Here it is a swollen part, expanded. Here it is not expanded, it is narrow, it is white. This swollen portion is known as a thalamus. Thalamus are also called as a torus, are also called as a receptacle. Receptacle. Other names: thalamus, torus, receptacle. And over this thalamus, four parts are present successively, one over the other. Four parts or four holes are present. And these four holes you have to remember. First, this is the green color portion. This is the green color. Similarly, just above the green color portion there is a colored portion. These are colorful, maybe red, white, according to the color of the flower. These are brightly colored. These portions are brightly colored portion. The first part is green color. This green color portion is known as a sepal. This green color portion is known as sepal. Sepal. And if you look in this diagram, I have shown two sepal. This is one sepal, this is another sepal. But no flower in our environment found where you find two sepal. Two sepals are not found. Minimum number of sepal are 3. Minimum number of sepal कितना होना चाहिए? 3. लेकिन यहाँ पर 2 क्यों दिखाया? Because it is a section of the flower. It is not a complete flower. It is a section of a flower. One sepal may be present at the back side, or it may be present in the front side, which is already section. After section, these parts are removed. So that's why sepal, minimum number of sepal is 3, 4 or 5. Like this. Minimum should be 3. Maximum is 5 or multiple of 5. Multiple of 5, not only 5. Multiple of 5 हो सकता है. Similarly 3, multiple of 3. So that's why if you find the sepal, just like in this diagram, 2 sepal you find. In a flower you find minimum 3 sepal. And this group of sepal is known as a calyx. ये sepal का group को क्या बोलेंगे? Calyx. ये याद रखना होगा. What is calyx?
group of sepal in a single flower, the group of sepal is called as a calyx. Just like I can show here, my fingers are present from the palm. This group of finger, it forms a whole. This whole of sepal is known as a calyx. Similarly, just above the sepal, if you look, just above the sepal, there is a brightly colored portion. This portion, this is colorful, brightly colored portion, and this portion is known as पेटा. ये portion को क्या बोलेंगे? पेटा. Same situation happens for the peta. If you look at the sepal, sepal can be multiple of 3, 4 or 5. Similarly, petal can be multiple of 3, 4 or 5. And a group of petal is known as a corolla. Group of petal is known as corolla. तो calyx खत्म हो गया, अभी आ गया corolla. तो calyx simple, you have to remember calyx means group of sepal, corolla means group of petal. Corolla के बाद, petal के बाद आएगा next portion. This portion, this stalk-like structure, thread-like structure. This is called as a stamen. This is known as a stamen. Similarly, here in this diagram, I have shown 2 stamen. Similarly, group of stamen are possible, and this group of stamen is called as androecium. Group of stamen को क्या बोलेंगे? Androecium. Group of stamen is known as androecium. Similarly, last, the final portion, this part, which is centrally present. Centrally, I have shown at the center of this flower, and this centrally located portion is known as a carpel. This is known as a carpel or pistil. Carpel or pistil. Similarly, here I have shown one carpel. There may be more than one carpel, and group of carpel or pistil is known as a gynoecium. क्या बोलेंगे? Gynoecium. तो 4 parts are present above the thalamus. तो थोड़ा रिकल करेंगे. स्टेम से क्या हुआ? फ्लावर इज अटैच्ड टू द स्टेम विद द हेल्प ऑफ पेडिसेल, एंड पेडिसेल, अपर एंड ऑफ पेडिसेल इज swollen, एंड दिस swollen एंड इज नोन एज थैलामस. थैलामस के ऊपर क्या क्या मिलेंगे? सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेल. सेपल एक नहीं मिलेगा. सेपल का ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला, ग्रुप ऑफ स्टामेन इज नोन एज एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ कार्पेल और पिस्टिल इज नोन एज gynoecium. But what is the important thing? Out of these 4 holes, these 4 holes are actually performing the function. What we have written here, sexual reproduction in flowering plant. This sexual reproduction in plants takes place by these 4 parts. Clear? But out of these 4 parts, the important thing, the first 2 from the lower side, the first 2 means a calyx and a corolla. The calyx and a corolla are not directly involved in reproduction. ये दोनों डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेंगे. लेकिन androecium, gynoecium, these 2 are directly involved in reproduction. इसलिए वो दोनों को डिफरेंट किया गया. तो फर्स्ट, the calyx, the sepal and petal, or calyx and corolla, these are not directly, which are not directly involved in reproduction. These are called as accessory holes. Accessory और नॉन एसेंशियल, इसका नाम से पता चल जाता है. accessory और नॉन एसेंशियल का मीनिंग क्या है? accessory और नॉन एसेंशियल होल, the first 2 calyx and corolla are known as accessory or non essential holes, but the androecium and gynoecium, these 2 are directly involved in reproduction. ये दोनों डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे. इसलिए ये दोनों का क्या बोला जाता है? These are called as essential or reproductive holes. Essential or reproductive holes. Reproductive, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. रिप्रोडक्टिव होल कौन कौन है और नॉन रिप्रोडक्टिव होल कौन कौन है? एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव, these 2 are directly involved. Androecium and gynoecium are directly involved. Androecium, gynoecium डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे. अगर एंड्रोशियम, गाइनोशियम नहीं तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. जैसे कि ह्यूमन में टेस्टिस और ओवारी, एनिमल में टेस्टिस और ओवारी. सिमिलरली इन दिस केस calyx and corolla are not directly involved in reproduction, so that's why calyx and corolla are called as accessory or non essential holes. But अगर हम essential hole को देखेंगे, essential reproductive which are directly involved in reproduction, there is 2, androecium and gynoecium. This androecium is known as a male reproductive organ. क्या बोलेंगे? Male reproductive और male sex organ. Male reproductive organ, इसको याद रखना पड़ेगा. Androecium is known as a male reproductive organ. Androecium का पार्ट कौन है? Stamen. Stamen are the part of androecium. बहुत सारे stamen को मिला के androecium होता है. तो stamen को भी हम बोल पाएंगे male reproductive organ.
Similarly, gynoecium is known as a female reproductive organ. Female reproductive organ. तो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट के पास, दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तुमको याद रखना पड़ेगा. फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज स्टामेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कार्पेल और पिस्टिल, और उसका ग्रुप को बोलते हैं गाइनोसियम. सो दीज आर पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. You can find these parts. So that's why in this flower I have shown two sex or two reproductive organ. You can easily mark, one is female reproductive organ carpel, another is male reproductive organ. जिस फ्लावर में ये दोनों पार्ट तुमको मिलेगा उनको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो यहाँ पर जो फ्लावर में दिखाया एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम, ये जो डायग्राम है बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई का मतलब क्या है टू, सेक्सुअल, टू सेक्स आर प्रेजेंट. Due to presence of two sex, male and female, it is a diagram of bisexual flower. Clear? So these are the important parts you have to remember before entering into this chapter. So now come to the next part. Flower portion complete. अभी क्या डिस्कस करेंगे? अभी थोड़ा फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर तुमको ओनली याद रखना है चार पार्ट क्या क्या है. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. कैलिक्स, कोरोला आर नॉन एसेंशियल एंड एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर एसेंशियल. और एंड्रोशियम है मेल, गाइनोशियम है फीमेल. तो अभी जाएंगे थोड़ा टाइप्स ऑफ फ्लावर की तरफ. टाइप्स. Now come to the types of flower. Types of flower. फ्लावर को पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. फ्लावर्स आर टू टाइप्स. वन इज कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट. अनदर इज इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट. ध्यान से सुनो, बहुत सारा क्वेश्चन यहां से आता है. कंप्लीट, इनकम्प्लीट. कंप्लीट इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट? कंप्लीट मींस व्हिच कंटेन एवरीथिंग. कंप्लीट. तो कंप्लीट फ्लावर किसको बोलेंगे? ए फ्लावर कंटेनिंग ऑल द फोर फ्लोरल होर्स जो डिस्कस किए थे. कैलिक्स, कोरोला अभी डिस्कस किए थे. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. कंटेनिंग ऑल द फोर फ्लोरल होर्स. That is calyx, corolla. corolla सेकंड था, corolla नॉन एसेंशियल है दोनों. उसके बाद क्या था? एंड्रोशियम. नेक्स्ट था गाइनोइशियम. तो फ्लावर कंटेनिंग ऑल द फोर फ्लोरल होर्स इज नोन एज ए कंप्लीट फ्लावर. तो इनकम्प्लीट का डेफिनेशन जरूरत ही नहीं, पता चल जाता है. Incomplete flower are those flower which are lacking minimum one से ज्यादा हो सकता है. ये चारों भी एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक एब्सेंट होना चाहिए. अगर मिनिमम ये चारों से मिनिमम एक भी लैक कर रहा है, मिस हो रहा है, मिसिंग एनी वन ऑफ द फ्लोरल होल, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट. तो इनकम्प्लीट फ्लावर आर दोज फ्लावर which are missing minimum one floral horn. कोई भी हो सकता है. कैलिक्स आ सकता है, कोरोला आ सकता है, एंड्रोशियम आ सकता है. क्लियर? इनकम्प्लीट. फिर से ये इनकम्प्लीट फ्लावर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. इनकम्प्लीट फ्लावर आर टू टाइप्स. अगेन some incomplete flower are called bisexual or hermaphrodite. Bisexual और hermaphrodite. और एक कैटेगरी है यूनिसेक्सुअल कैटेगरी. बाइसेक्सुअल और hermaphrodite, यूनिसेक्सुअल.
तो बाइसेक्सुअल क्या है? बाई मीन्स टू. If incomplete flower, incomplete means any one is lacking out of four are not present, any one is lacking. ये लैक होने के बाद भी, अगर एक इनकम्प्लीट फ्लावर में एक फ्लोरल होल लैक होने के बाद भी, मिसिंग होने के बाद भी उसके पास दोनों सेक्स और रिप्रोडक्टिव होल है, मीन्स एंड्रोशियम गाइनोशियम containing androecium and gynoecium both, उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट. क्लियर? तो कभी कभी कंप्लीट फ्लावर बाइसेक्सुअल जैसा लगेंगे, कंप्लीट फ्लावर भी बाइसेक्सुअल, लेकिन कंप्लीट के पास ये चार है, बाइसेक्सुअल के पास ओनली वही दोनों है, एंड्रोशियम गाइनोशियम है, लेकिन एनी वन इज मिसिंग, कोई भी एक मिस कर रहा है जो कैलिक्स और कोरोला से. क्लियर हो रहा है? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर लैकिंग, मिसिंग एनी होल बट कंटेनिंग बोथ द रिप्रोडक्टिव होल्स, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा? इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एनी वन रिप्रोडक्टिव होल इज प्रेजेंट, नॉट बोथ. हियर androecium gynoecium both is present. Here either androecium or gynoecium, either of reproductive hole is present, either of the reproductive hole, either means only androecium रह सकता है या only gynoecium. क्लियर? तो अगर एक फ्लावर के पास ओनली एंड्रोशियम आ गया, एंड्रोशियम गाइनोशियम नहीं होगा. अगर और एक फ्लावर के पास ओनली गाइनोशियम आ गया, उसके पास एंड्रोशियम नहीं होगा. तो इसलिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर फिर से दो तरह का हो जाते हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर इज ओनली वन टाइप, बाइसेक्सुअल के पास दोनों होगा, एंड्रोशियम गाइनोशियम बोथ प्रेजेंट. बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा? आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम. अभी मुझे बताओ एंड्रोशियम का ईच यूनिट का नाम क्या है? एंड्रोशियम किस किस को लेकर बना हुआ था? एंड्रोशियम इज द ग्रुप ऑफ स्टामेन. सिमिलरली गाइनोशियम इज द ग्रुप ऑफ कार्पेट. तो अगर एक फ्लावर के पास एंड्रोशियम है, उसको बोलेंगे स्टामिनेट फ्लावर. क्या बोलेंगे? स्टामिनेट फ्लावर. एंड्रोशियम कंटेनिंग फ्लावर आर कॉल्ड एज स्टामिनेट फ्लावर. सिमिलरली गाइनोशियम कंटेनिंग फ्लावर, गाइनोशियम का ईच यूनिट को क्या बोलेंगे? कार्पेल और पिस्टिल. तो उनको बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर. पिस्टिलेट फ्लावर. तो ये है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर. तो फ्लावर, अगर फ्लावर को देखेंगे, फ्लावर को पहले हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए, कंप्लीट, इनकम्प्लीट. तो कंप्लीट फ्लावर का डायग्राम तो पहले था, पहला वाला जो डायग्राम था. अभी इनकम्प्लीट का डायग्राम बनाएंगे, तो मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, तुम डायरेक्ट नोट में प्रैक्टिस करना उसको. तो इनकम्प्लीट फ्लावर का, अगर इनकम्प्लीट फ्लावर का बाइसेक्सुअल का मैं ड्रॉ करूं, कैसे होगा? एक पेडिसिल होगा, पेडिसिल के बाद क्या होगा? सेपल पेटाल. लेकिन यहां पर लिखा है इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट मींस एनीवन इज लैकिंग. लेट सेपल इज लैकिंग बट पेटाल इज प्रेजेंट, तो पेटाल डायरेक्ट दिखा देगा पेटाल. लेकिन बाइसेक्सुअल है तो स्टामेन दिखाना पड़ेगा, कार्पेल दिखाना पड़ेगा. ये है इनकम्प्लीट बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. क्लियर? लेकिन यूनिसेक्सुअल में दिखाएंगे तो यूनिसेक्सुअल में ऐसा डायग्राम नहीं आएगा. क्या मॉडिफिकेशन होगा थोड़ा बताओ? यूनिसेक्सुअल में अगर स्टामिनेट फ्लावर है तो इस फ्लावर में क्या दिखाऊं? ऐसे, लेट दिस इज द पेटल एंड ओनली स्टामेन्स आर प्रेजेंट, स्टामिनेट. अभी पिस्टिलेट का डायग्राम तुम खुद बना सकते हो, ओनली कार्पेल. तो यहां पर ये सेक्स ऑर्गन को देख के उनको बाइसेक्सुअल है यूनिसेक्सुअल. तो इनकम्प्लीट फ्लावर आर टू टाइप्स मेनली, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल. ये बाइसेक्सुअल को कभी कभी परफेक्ट वर्ड में भी यूज किया जाता है. बाइसेक्सुअल फ्लावर, हर्माफ्रोडाइट और परफेक्ट फ्लावर. परफेक्ट, क्यों उनको परफेक्ट फ्लावर बोला गया? परफेक्ट मींस बोथ द सेक्स आर प्रेजेंट, तो इसलिए ये रिप्रोडक्शन के लिए परफेक्ट है ये फ्लावर, तो परफेक्ट. तो सिमिलरली यूनिसेक्सुअल का बोलो, यूनिसेक्सुअल का क्या होगा? परफेक्ट का ऑपोजिट इम्परफेक्ट. These are called imperfect flower. Perfect and imperfect. तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में डिफरेंस, यूनिसेक्सुअल इज कॉल्ड इम्परफेक्ट, बाइसेक्सुअल आर कॉल्ड परफेक्ट. लेकिन ये दोनों को छोड़ के कभी कभी ऐसा आता है, ये दोनों में क्या हुआ? बाइसेक्सुअल में दो सेक्स है, एंड्रोशियम गाइनोशियम. यहाँ पर इधर एंड्रोशियम, अगर एंड्रोशियम है तो गाइनोशियम एब्सेंट, यहाँ पर ओनली गाइनोशियम है, एंड्रोशियम एब्सेंट. तो ये दोनों कैटेगरी को छोड़ के और एक कैटेगरी है जो इनकम्प्लीट फ्लावर में,
जिसको बोलते हैं न्यूटर फ्लावर। तो यहाँ पर दिखाता हूँ, तो ये बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल को छोड़ के और एक कैटेगरी है न्यूटर फ्लावर। न्यूटर, इसका नाम से पता चलता है, न्यूटर मीन्स न्यूट्रा, जिसके पास कोई भी सेक्स नहीं होगा। कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिसके पास ओनली सेपल या पेटल होता है, मीन्स एंड्रोशियम गाइनोशियम नहीं होता है। अगर डायग्राम में दिखाएं तो ऐसे होगा, ये होगा पेडिसिल, उसके पास सेपल होगा, पेटल होगा, लेकिन एंड्रोशियम गाइनोशियम नहीं होंगे। स्टामेन कार्पेल देखो नहीं है। तो जिसके पास स्टामेन कार्पेल बोथ आर एब्सेंट, those flower which are missing both the reproductive hole are known as a neuter। कभी कभी उसका भी डेफिनेशन आ जाता है, व्हाट इज neuter? flower missing both the reproductive hole, both the reproductive hole means androecium gynoecium। मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं न्यूटर फ्लावर आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ परफेक्ट। परफेक्ट में दोनों होगा, इन न्यूटर में दोनों एब्सेंट, लेकिन यूनिसेक्सुअल में either one एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो ये तीनों को तुम कंपेयर करके पढ़ना है। परफेक्ट में दोनों मिलेगा, न्यूटर में कोई भी नहीं मिलेगा, बोथ आर मिसिंग, बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। हियर आइदर एंड्रोशियम होगा तो स्टामिनेट फ्लावर, गाइनोशियम होगा तो पिस्टिलेट फ्लावर। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। अबाउट टाइप्स ऑफ फ्लावर इतना तक क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ फ्लावर अभी थोड़ा आगे चलेंगे। तो एक कंप्लीट फ्लावर को फिर से ड्रॉ करेंगे। कंप्लीट फ्लावर कैसे दिखाई देता है? कंप्लीट फ्लावर में बताया था, लेट दिस इज द स्टेम, flowers attached to the stem with the help of pedicel long stalk। this is the pedicel, upper end of pedicel is swollen, known as thalamus। थैलामस के ऊपर क्या होगा? फर्स्ट आएगा सेपल, उसके बाद आएंगे पेटल, उसके बाद आएंगे स्टामेन, उसके बाद आएंगे कार्पेल और पिस्टिल। यहाँ पर जो देखा है फर्स्ट पार्ट सेपल, ईच यूनिट इज नोन एज सेपल, ऐसा नो। टोटल ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स के अंदर सेपल मिलेगा, सेपल के बाद आएंगे पेटल, उसके बाद स्टामेन। ईच यूनिट का नाम लिख रहा हूं, ग्रुप का नाम नहीं लिख रहा हूं। कार्पेल और पिस्टिल, इसको बोलेंगे कार्पेल और पिस्टिल। ओके, तो देखा गया ये जो सेपल का अरेंजमेंट थोड़ा होता है फ्लावर के अंदर। कैसे? तो अरेंजमेंट आर मेनली टू टाइप्स। ये जो सेपल है, एक सेपल को बाहर दिखाता हूं। कभी कभी क्या होता है, सेपल्स समटाइम सेपल्स आर यूनाइटेड विथ ईच अदर। एक सेपल और एक सेपल के साथ लगा हुआ होता है, ऐसे यूनाइटेड। समटाइम्स सेपल्स आर यूनाइटेड, sometimes sepals are free like this, you can see easily in the diagram। sometimes sepals are united, sometimes sepals are free। when sepals are united or fused with each other, it is called as a gamocephalous condition। क्या बोलेंगे? gamocephalous। and when sepals are free, कोई भी कांटेक्ट नहीं रहेगा एक सेपल के साथ और एक सेपल का, उसको बोलेंगे पॉलीसेपलस। ये कभी कभी तुम्हारा 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो व्हाट इज गेमोसेफालस? यूनाइटेड सेपल, यूनाइटेड सेपल इज नोन एज गेमोसेफालस। फ्री सेपल, फ्री मींस कोई भी कनेक्शन नहीं, फ्री सेपल आर नोन एज पॉलीसेफालस। दिस कंडीशन, 2 कंडीशन आर देयर, गेमोसेफालस एंड पॉलीसेफालस। सिमिलरली अगर पेटल को देखेंगे, पेटल सिमिलरली एक टर्म आएगा गेमोपेटालस, सेम डेफिनेशन इज सेम, यूनाइटेड पेटल। यूनाइटेड सेपल गेमोसेफालस था, यूनाइटेड पेटल हो जाएगा गैमोपेटालस। कंडीशन गैमोपेटालस यूनाइटेड, सिमिलरली फ्री पेटल हो जाएगा पॉलीपेटालस। क्लियर? स्टामेन कार्पेल के लिए थोड़ा अलग रहेगा, तुम ओनली इतना ही याद रखो, सेपल के लिए गेमो, सेपल और पेटल के लिए गेमो और पॉली वर्ड यूज होता है। क्लियर? ये दोनों को छोड़ के और एक इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी देखा गया फ्लावर में सेपल पेटल नहीं होता है। सेपल मींस कैलिक्स, सेपल का ग्रुप को क्या बोलेंगे? होल को कैलिक्स।
कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को? कैलिक्स आर ग्रीन इन कलर, कोरोला आर कलर्ड, मे बी रेड, येलो, दीज आर कलरफुल बट दीज आर ओनली ग्रीन इन कलर। कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिसमें कैलिक्स कोरोला दे आर मिक्स्ड और इंडिस्टिंक्ट, कैलिक्स कोरोला के बीच डिफरेंस पता नहीं चलेगा। ए फ्लावर देखो, ए फ्लावर में कैलिक्स नीचे है, ए वाला है कोरोला, कंप्लीट डिफरेंट कैलिक्स एंड कोरोला। अभी और एक डायग्राम दिखाता हूं, यहां पर एक फ्लावर ले जाओ, लेट दिस इज द पेडिसिल एंड हियर and part arranges. Now tell me, in this flower, which one is calyx, which one is corolla? एंड्रोशियम तो पता चल जाता है, एंड्रोशियम गाइनोशियम डायरेक्ट पता कर लोगे, लेकिन कैलिक्स कौन और कोरोला कौन बताओ? तो हियर इन दिस फ्लावर, इन दिस केस, calyx and corolla are indistinct. Calyx and corolla are indistinct. When calyx and corolla are indistinct, it is called as a perianth. Perianth. क्या बोलेंगे? Perianth. तो कैलिक्स और कोरोला दोनों को मिला के एक टर्म यूज होता है पेरियांथ। तो पेरियांथ अगर क्वेश्चन आया, व्हाट इज पेरियांथ? द स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, फ्यूजन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर इंडिस्टिंक्ट, इट फॉर्म ए स्ट्रक्चर नोन एज पेरियांथ। एंड ईच पार्ट, जैसे कैलिक्स का ईच पार्ट को क्या बोलते थे? सेपल। कोरोला का इस पार्ट को पेटल। अभी तो कैलिक्स कोरोला वर्ड यूज नहीं होगा, कैलिक्स कोरोला को मिला के हम क्या कर दिए? पेरियांथ। इसका ईच यूनिट को बोलेंगे टेपाल। क्या बोलेंगे? टेपाल। मीन सेपल पेटल मिक्स हो गया टेपाल। तो बहुत सारे टेपाल को मिला के फॉर्मेशन होता है पेरियांथ। तो पेरियांथ आर द इंडिक्स्ड व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर इंडिस्टिंक्ट। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर इंडिस्टिंक्ट, इट फॉर्म ए स्ट्रक्चर नोन एज पेरियांथ एंड ईच पार्ट ऑफ द पेरियांथ इज नोन एज टेपाल। Clear? So this is a special type of flower mainly found in Liliaceae family. Lily, the tulip, gloriosa, aloe, asparagus, colchicum, autumnal, onion, garlic, ये सब flower में ऐसा structure दिखाई देगा, perianth. Clear? So this is all about your different types of flower. Complete, incomplete, bisexual, unisexual, hermaphrodite, ये सब बताया। ये सब के बारे में याद रखना होगा। अभी थोड़ा देखेंगे कार्पेल के बारे में। स्टामेन के बारे में इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लावर, बट नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ फ्लावर विथ रेस्पेक्ट टू कार्पेल। कार्पेल को देख के फ्लावर को फिर से कैटेगराइजेशन किया गया। तो फ्लावर, तो पहले मुझे बताओ, इफ यू लुक एट ए फ्लावर, 4 पार्ट्स आर प्रेजेंट, अगर कंप्लीट है तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ईच यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज नोन एज कार्पेल। तो कार्पेल को देख के फ्लावर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फ्लावर्स आर 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल। अगर एक फ्लावर के पास एक ही कार्पेल है तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलारी। मोनो मीन सिंगल, मोनोकार्पेलारी फ्लावर। मोनोकार्पेलारी, मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। कार्पेल वर्ड यूज है। फ्लावर कंटेनिंग सिंगल कार्पेल आर नोन एज मोनोकार्पेलारी। सिमिलरली, flower containing more than one carpel are known as multicarpellary or polycarpellary। multicarpellary और polycarpellary, ये दोनों टर्म पहले क्लियर हुआ। मोनो मीन सिंगल, कार्पेल, अगर फ्लावर के पास एक ही कार्पेल है मोनोकार्पेलरी। अगर फ्लावर के पास बहुत सारे कार्पेल है मल्टीकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी। लेकिन इंपोर्टेंट मोनोकार्पेलरी नहीं, इंपोर्टेंट पॉलीकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। ये जो मल्टीकार्पेलरी फ्लावर है, मल्टीकार्पेलरी फ्लावर को फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। यहाँ पर हम ओनली कार्पेल देख रहे हैं, यहाँ पर कौन कंप्लीट कौन इनकम्प्लीट ये सब नहीं दिख रहे। यहाँ पर ओनली कार्पेल, जिसके पास कार्पेल होगा वो बाइसेक्सुअल हो सकता है, यूनिसेक्सुअल का पिस्टिलेट टाइप भी हो सकता है। तो मल्टीकार्पेलरी में बहुत सारे कार्पेल होगा, ये तो हमको क्लियर हो गया कार्पेल। लेकिन कार्पेल का 2 कंडीशन आता है, जैसे सेपाल में देखे थे गेमोसेपालस, पॉलीसेपालस। यहाँ पर क्या है? 2 कंडीशन आएगा। समटाइम कार्पेल्स आर यूनाइटेड और कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। एक कार्पेल दिखा है, सेकंड कार्पेल, थर्ड कार्पेल। इन सम फ्लावर कार्पेल्स आर यूनाइटेड, इन सम फ्लावर्स कार्पेल्स आर फ्री। कुछ फ्लावर में कार्पेल फ्री भी दिखाई देंगे। देखो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कार्पेल आर 3 दिखाया, ज्यादा भी हो सकता है। तो 3 मीन्स मोर देन 1 मल्टीकार्पेलरी, ये भी मोर देन 1 मल्टीकार्पेलरी।
दोनों मल्टी कार्पेल, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखो। इन मल्टी कार्पेलरी समटाइम कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, हियर फ्यूज्ड कार्पेल, फ्यूज्ड कार्पेल, फ्यूज्ड कार्पेल और यूनाइटेड कार्पेल, फ्यूज्ड कार्पेल और यूनाइटेड कार्पेल, हियर फ्री कार्पेल, फ्री कार्पेल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से, फ्यूज्ड कार्पेल को क्या बोलेंगे? गैमोकार्पेलस नहीं बोलेंगे, वहां पर गैमोसेपालस सेपाल पेटाल के साथ गैमोवार्ड यूज होगा। यहाँ पर फ्यूज्ड कार्पेल को क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। ये टर्म याद रखना पड़ेगा, बहुत बार आया है। व्हाट इज सिनकार्पस कंडीशन? व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सिनकार्पस कंडीशन। व्हेन कार्पेल्स आर फ्री, दैट इज कॉल्ड एज अपोकार्पस, अपोकार्पस। पॉलीवर्ड, गेमोपॉलीवर्ड यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो सिनकार्पस मींस फ्यूज्ड कार्पेल, अपोकार्पस मींस फ्री कार्पेल। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल आ जाता है तुम्हारा नीट में। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ सिनकार्पस? सिनकार्पस मींस फ्यूज्ड कार्पेल। सिनकार्पस का एग्जाम्पल आएगा पीएमटी। तुम्हारा नीट से पहले एक पीएमटी हो रहा था, प्री मेडिकल टेस्ट, क्लियर? अदरवाइज फॉर्म माड़ा पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट। तो पी से आएगा पापा भर, पापा भर। एम से आएगा मस्टर्ड, मस्टर्ड। टी से आएगा टमाटो। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल, और बहुत सारे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ये तीन एटलीस्ट तुमको याद रखना पड़ेगा। पापा भर, मस्टर्ड, टमाटो, ये है तीन सिनकार्पस। सिमिलरली अपोकार्पस होगा अलार्म, ए अलार्म, ALRM, अलार्म लगाते हो सुबह उठने के लिए। एक है लोटस, और एक है रोज, और एक है मिचेलिया, मिचेलिया चंपा का, चंपा, मिचेलिया। These are the common example of syncarpus and apocarpus flower। लेकिन ये तो मल्टीकार्पेलरी फ्लावर कंप्लीट हो गया, लेकिन मोनोकार्पेलरी क्या है? मोनोकार्पेलरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मोनोकार्पेलरी मींस सिंगल कार्पेल। ये मोनोकार्पेलरी फ्लावर तुम्हारे 11th में बहुत सारे फैमिली पढ़े हो, क्लियर? 4 फैमिली पढ़े हो, एक है मस्टर्ड फैमिली और एक है फाबासी, फाबासी फैमिली। फाबासी मींस जो डाल टाइप के प्लांट। वो फाबासी फैमिली में क्या होता है? हर प्लांट मोनोकार्पेलरी। फाबासी लेगुमिनस, प्रोटीन, प्रोटीन रिच प्लांट्स, मेनली पी, बीन, ग्राउंडनट, इंडिगोफेरा, सनम, सिसबानिया, ट्राइफोलियम, लुपिन, मुलियाती, स्वीट पी, अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, ये सब आएंगे। तो एक एग्जांपल अगर याद रखना चाहते हो तो पी याद रख सकते हो, बट इंपोर्टेंट थिंग दिस टू, व्हाट इज सिनकार्पस एंड अपोकार्पस कंडीशन। तो स्टामेन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तुम कार्पेल के लिए याद रखोगे सिनकार्पस अपोकार्पस कंडीशन है, और सेपाल पेटाल के लिए गेमोसेपालस, पॉलीसेपालस, क्लियर? तो दिस इज द टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल। नंबर ऑफ कार्पेल के हिसाब से हम डिवाइड कर दिए ये सब कैटेगरी में। तो अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे एक प्लांट के बारे में, पॉलीगामस प्लांट। व्हाट इज पॉलीगामस? पॉलीगामस प्लांट। पॉली मीन्स मेनी, गामस मीन्स सेक्स। तो व्हाट इज पॉलीगामस प्लांट? Plant containing both unisexual and bisexual flower. Plant with both unisexual, यूनिसेक्सुअल का नाम बताओ। यूनिसेक्सुअल का और एक नाम था, परफेक्ट या इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट क्यों? क्योंकि दोनों सेक्स नहीं मिलेंगे, एक ही सेक्स मिलेगा। विथ बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स परफेक्ट, both perfect and imperfect flower, both unisexual and bisexual flower are known as polygamous। एग्जाम्पल में आएगा मैंगो एंड मैरीगोल्ड, मैंगो, मैरीगोल्ड। ये दोनों के पास क्या होता है? बोथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होता है, क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलीगामस, पॉलीगामस प्लांट।
सो ये सब फ्लावर के बारे में कंप्लीट हुआ। फ्लावर से तुमको इतना चीज एटलीस्ट मिनिमम याद रखना होगा, क्योंकि एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पार्ट एज वेल एज इन योर बोर्ड एग्जाम। क्लियर? तो फ्लावर खत्म होने के बाद अभी ये तो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली कैसे होता है? मेल सेक्स ऑर्गन यूज होता है स्टामेन और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पेल। तो हम शुरू करेंगे स्टामेन से। स्टामेन, ऑलरेडी यू नो व्हाट इज स्टामेन। स्टामेन इज कॉल्ड मेल सेक्स ऑर्गन। स्टामेन को क्या बोला जाता है? मेल सेक्स ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ एंड्रोशियम। अगर स्टामेन को देखेंगे, ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। अगर एक स्टामेन को देखेंगे अच्छे से, स्टामेन के पास तुमको 2 चीज मिलेगा। ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। This portion a lobed and this long structure. This long stalk is sterile part. ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा। हम डिस्कस किए थे क्या, स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट ये जो स्टामेन, टोटल स्टामेन का ओनली वही पोर्शन फर्टाइल है। दिस इज द फर्टाइल पार्ट। फर्टाइल मीन्स विच एक्चुअली हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। दिस इज स्टेराइल। रिप्रोडक्शन में उसका कुछ लेना देना नहीं, ये ओनली क्या सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट टू कीप दिस पोर्शन फिट टू द फ्लावर। तो ये जो स्टेराइल, लॉन्ग स्टेराइल पोर्शन, इसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, तो व्हाट इज फिलामेंट? लॉन्ग स्लेंडर स्टेराइल स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। सिमिलरली द फर्टाइल पार्ट इज नोन एज आंथर। Anther is the fertile and it is the lobed portion. Fertile lobed portion is known as anther, and anther is connected to filament by special tissue. एक टिश्यू होता है anther और filament के बीच, जिसको बोलते हैं connective. Connective. This is known as connective. So these are the parts of stamen. अगर एक stamen को देखेंगे इतना पार्ट मिलेगा, लेकिन अगर एक स्टामेन को हम ट्रांसवर्सली कट करेंगे, ऐसे कट कर देंगे स्टामेन, ईच स्टामेन आफ्टर ट्रांसवर्स सेक्शन तुमको 2 लेयर मिलेगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर ऐसे। तो इसलिए स्टामेन को बाइलोब्ड बोला जाता है। ईच स्टामेन इज बाइलोब्ड। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं यहां पर। ये तो रहेगा फिलामेंट, दिस इज द आंथर पार्ट। तो ये सेक्शन करके ऊपर हटा दिया। तो ईच स्टामेन अगर अंदर देखेंगे, आंथर के अंदर, स्टामेन में आंथर, दिस पार्ट, ईच आंथर इज बाइलोब, इसको आंथर लोब बोलते हैं। ये एक लोब, ये एक लोब, 2 लोब है, 2 साइड्स, दिस आर कॉल्ड एज आंथर लोब। क्या बोलेंगे इसको? आंथर लोब। तो each anther consists of 2 sides known as anther lobe, and inside each anther lobe there is 2 sac like structure. sac मिलेगा, 2 sac space, and these sac are known as a pollen sac. These sac are known as pollen sac. pollen sac. तो फर्स्ट तुमको याद रखना पड़ेगा, each anther consists of 2 lobe. कितना लोब मिलेगा? 2 लोब, 2 साइड्स। सो इसलिए इसको बाइलोब्ड बोलते हैं। बाइलोब्ड। बाइलोब्ड क्यों? बाई मीन्स 2, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 आंथर, 2 आंथर लोब। द आंथर आर बाइलोब्ड एंड ईच लोब के पास 2 सैक मिलेगा, पोलन सैक। तो टोटल 4 पोलन सैक मिलेगा। एंड दिस पोलन सैक व्हेन मैच्योर, आफ्टर मैच्योरेशन, वो मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम।
microsporangium. This pollen sacs mature to form microsporangium. कितना पोलन सैक था? 4 कर्नल में 4 पोलन सैक था। अभी वो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बना देंगे तो इसको टेट्रास्पोरेंजियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेनिंग स्टामेन को टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। टेट्रा मींस 4, टेट्रास्पोरेंजिएट 4 माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेनिंग फ्लावर, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो this up to this it is clear to everybody. So first you read carefully this portion, and in the next lecture we will discuss more about this much for today. Thank you.